Welcome student, this is the second part of this video. Okay, let's continue this chapter with this topic removal insoluble impurities. इस पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पानी जो हमारे घर तक आता है तो वो बहुत से मेथड्स यूज़ करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है. तो क्या क्या मेथड है प्यूरिफाई करने का पानी को, आइए हम लोग पढ़ते हैं. Removing insoluble impurities. Insoluble impurities such as dust, mud and sand can be removed by using different methods given below. What are these methods? First is sedimentation and decantation. When a mixture's heavy impurities is kept in dust undisturbed for sometimes the heavy particles settle down. The heavy particles that settle down are called sediments and the process is called sedimentation. This is a simple way to separate insoluble heavy particles from a liquid. जब हैवी इम्प्योरिटीज़ जो मिक्सचर जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो हैवी पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. तो जो हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं उनको कहते हैं सेडिमेंट, और वो दोनों मिलकर उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन. तो ये काफ़ी सिंपल वे है किसी भी इंसॉल्युबल मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, हैवी पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करने. After sediment has settled down, the clear liquid on the top can be poured out carefully. This is called decantation. Sand or mud can be separated from water using this process. Sedimentation के प्रोसेस के बाद क्या हो जाता है, वो जो क्लियर लिक्विड है जो ऊपर में आ जाता है उसको हम pour out कर लेते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं decantation. सैंड और मड को भी सेपरेट किया जाता है इसी प्रोसेस से. सेकेंड प्रोसेस है filtration. In some mixture, the particles do not settle down easily or they float. In this case, filtration is used to separate the impurities from the liquid. The liquid that collects after filtration is the filtrate. A sieve is used to separate tea leaves from other tea, and a filter paper or cloth is used to separate mud from water. तो बहुत से प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी कुछ पार्टिकल सेटल नहीं हो पाते हैं ईजिली, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल इजीली सेपरेट नहीं हो पाते. तो इस केस में फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है छोटी छोटी उस इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए. जो तो लिक्विड कलेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन के बाद उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट. एक सीव का यूज़ किया जाता है टी को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि एक छन्नी का यूज़ किया जाता है चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए. उसी तरह फिल्टर पेपर या क्लॉथ का यूज़ किया जाता है मड को वाटर से अलग करने के लिए. रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब सॉल्युबल मतलब जो घुल चुके हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग किया जाता है. Soluble impurities more difficult than removing insoluble impurities. They can be separated using the different processes given below. Soluble impurities बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है insoluble impurities के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेपरेट हो चुके होते हैं तो इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है. तो इन सब के लिए प्रोसेस है evaporation. When a liquid contains a dissolved substance, we can get the solute by heating the mixture until all the liquid evaporate the solid substance. Solute is left behind. Salt and sugar can be separated from their solution in water by using this method. In this process, however, the liquid solvent evaporates and is thus lost. जब लिक्विड बहुत से डिजॉल्व सब्सटेंस कंटेन कर लेता है तो हम लोग को सॉलिड मिलता है हीट करने पर. उस मिक्सचर को जब तक हम हीट नहीं करते हैं उस तक कि वो लिक्विड को इवापोरेट कर सकें. तो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है यानी कि सॉलिड वो बच जाता है उस जगह पे, जैसे कि सॉल्ट और शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं इन सॉल्यूशन में इस मेथड के कारण. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स रह जाता है. सेकेंड है डिस्टिलेशन. This method is used to get both the solid and the solvent from a solution. Distillation involves evaporation and condensation. The solution is heated and the solvent evaporates. The vapor is cooled to form the solvent again, and the solvent obtained is pure and is called distillate. Distillation का प्रोसेस क्या है कि मेथड्स में हम दोनों सॉलिड और सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से अलग करते हैं. डिस्टिलेशन इन्वॉल्व इवापोरेशन और कंडेंसेशन में भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, सॉल्वेंट को इवापोरेट करते हैं और वेपर को कूल्ड करके सॉल्वेंट दोबारा बनाया जाता है. तो इस सॉल्वेंट को फिर ऑब्टेन किया जाता है एज अ प्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेट. अब है कि हमारे घर जो पानी आता है तो वो प्यूरिफाई कैसे होता है, उनके कुछ प्रोसेस हैं, आइए जानते हैं. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैड मैनी इम्प्योरिटीज. इट इज प्यूरिफाइड एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट इज सेंट टू आवर होम्स. देयर आर मैनी प्रोसेसेस इन वाटर प्यूरिफिकेशन. तो क्या क्या है प्रोसेस. पहला है कोगुलेशन. Chemicals are added to water to make dirt and other fine particles. The water stick to each other and become larger particles. These larger particles can settle down. केमिकल्स ऐड किया जाता है पानी में ताकि डर्ट और अदर फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक हो जाए और काफ़ी लार्ज पार्टिकल्स बन जाए, ताकि हमें आसानी हो उसको रिमूव करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए. उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस. तो जो हैवी पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाते हैं वो क्लीन वाटर को फिर हम उसमें से अलग निकाल करके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाते हैं. फिर है फिल्ट्रेशन. Water passes through filters made of layers of sand, gravels and charcoal to remove smaller particles. उसके बाद वाटर को पास किया जाता है फिल्टर्स में ताकि जो लेयर होता है सेंड, ग्रेवल्स और चारकोल्स का वो रिमूव हो सके. उसके बाद है डिसइंफेक्शन. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड टू किल एनी बैक्टीरिया और अदर जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन हियर. उसके बाद एक डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें एक छोटे मात्रा में क्लोरीन का ऐड किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके.
उसके बाद लास्ट होता है स्टोरेज। वाटर इज स्टोर्ड इन अ क्लोज टैंक और रिजर्वोयर। दिस वाटर इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स टू हाउसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन। लास्ट में स्टोर किया जाता है पानी को टैंक और रिजर्वोयर में। उसके बाद ये वाटर सप्लाई होता है हमारे डोर टू डोर पाइप के कारण, पाइप से या फैक्ट्री से या फिर हॉस्पिटल से।